موت آ کر رہنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عورتوں میں 5 عورتیں ایسے ہیں جس کو موت بہت آسان آئے گی۔ 5 عورتوں کو موت کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسی 5 عورتیں جن کو موت کے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خوش نصیب 5 عورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ 5 عورتیں کون سی ہیں جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رشتہ دار کا کمزور نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکی ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس مضمون کی روایت ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی حد تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس سے مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کا وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالی کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر اور ثواب، گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے، اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے سمندر کا پانی پی جائے، اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ بھی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، لیکن موت آسان ہوگی۔ بغیر تکلیف کی ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی کمی میسر ہوگی؟ فرمانے لگے، سب سے پہلا شخص وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کے وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، جب کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے، اسلام میں بہن کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل اور کو جہیز دینا یہودی کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں اور کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے، والدہ کے ترکہ میں جس طرح ان کی مراد نرینہ اولاد کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹی کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد ترکہ میں بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائی پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بادشاہت بھر زمین بھی ازرہ ظلم لے لے گا، قیامت کا دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین
इसे गले में तौ के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा यानी इसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन की जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे, जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदी की रस्म है। इसका बड़ा नुकसान है, जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता, इसी तरह आज इस्लाम में औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रकावट जहेज है। यही बात की बेटी बैठी बैठी बुरी हो जाती है, जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इस तरह अगर शख्स ये कहे कि बहन का विरासत से हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब इसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहन को बर्बाद हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो इस औरत ने बहुत असरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर इसके असरार को कबूल किया गया, उसे कब्रिस्तान में इस जगह ले जाया गया जहाँ इसके भाई की तदफीन होने वाली थी। इसके देखते ही देखते मरीज को कब्र में उतारा गया, इसके भाई को मट्टी का सुपुर्द कर दिया गया। जब दवा की बारी आई तो तमाम अज़ीज़ के सामने सोती हुई बहन ने भी आसमान की जानब अपने हाथ उठाए, आसमान की जानब देखा, इसका दिल रो रहा है, आंखें छम छम बरस रही हैं। इसने एक ऐसी दुआ की, लोगों ने मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानब देख कर फरियाद की कि ऐ मेरे मालिक, ऐ साफ करने वाले, आज मेरा भी साफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक, तुम मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे मुझसे बिलखते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस ना आया। मेरे बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी रहम ना आया। मैं अपनी बहनों की विरासत का जो उनका हक है उसे अदा करूं। मेरे मालिक, तो आज इंसाफ कर दे, और जिस तरह इसने मेरी विरासत के हक से मुझे दूर रखा है, इस तरह तू उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो नाजरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचो, जब तुम अपनी बहनों को इनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए माहौल की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरो या मजलूम बन के? नाजरीन, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। जब वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी, फरमाया कसर सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल दौलत में से जो सदका करता है, जब वह अपने एक हाथ से किसको देता है दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। यानी दूसरा इंसान वो है जो कसर सदका करेगा, इसकी मौत के बाद इसकी रूह आसानी से निकलेगी, जान जाने का अमल इसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों से गर्म दिली का रवैया रखने वाला है, उन बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, रात का लुकमा कमा कर उन बीवी बच्चों की हिफाजत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज़्क तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, खिलाना पिलाना सदका है। जब ऐसा शख्स अपनी फैमिली पर खर्च करता हो, उसे हसन सलूक करता हो, जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी, उसे कोई तकलीफ ना होगी। इस तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो शख्स जो सोच कर नमाज अदा करता है, जो नमाज अदा कर रहा है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है,
नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मराज है, इस्लाम और कुफर में तफरीक है। तो 5 वक्त नमाजी मौत का वक्त किसी किस्म का सख्ती में मुबतला ना होगा। फिर फरमाया 5वां वो शख्स है जो कुरान की तिलावत करता हो, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हज़रत अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत रोने की कोशिश भी करें फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो। क्या तुम इतने संगदिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू नहीं बहाती? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के दरपेश सख्ती का मंजर देखा है, तब से किसी की आसान मौत पर खुश नहीं होती, आसान मौत नसीब होने की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ना तो मौत की सख्ती मरने वाले के बुरे इल्जाम की दलील है, ना आसान मौत कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है। सचमुच ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान से आसान तर मौत नसीब होती। ये वजह है ना वो मौत की सख्ती को नापसंद करती थी और ना किसी की आसान मौत पर खुश होती थी। मौत की सख्ती के बारे में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत निज़ाम में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ दाखिल करते और फिर अपने चेहरे पर फेर लेते, फरमाते, या अल्लाह बहुत की सख्ती में मेरी मदद फरमा। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है और वो निकलते ही इसके लिए खुशखबरियाँ शुरू हो जाती हैं, जबकि काफिर के बारे में आता है इसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और इस वक्त से ही इसके बुरे हवाल शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता मुताबिक हदीस मुबारक में यह भी मज़कूरा है कि ताला ने मौत के अंदर की ऐसी शिद्दत सख्ती रखी है कि इसका एहसास दुनिया से जाने वाले हर शख्स को होता है, वह नेक मुसलमान हो या बद हो या काफिर हो, लेकिन मोमिन पर जो तकलीफ आती है उसके गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी के लिए होती है, जबकि काफिर पर तकलीफ इसकी बदअमाली की सजा के तौर पर आती है। चनाचे एक हदीस में आता है मोमिन को ना करता है, इस वजह से इस पर मौत के वक्त सख्ती की जाती है ताकि इसके गुनाहों का कफारा हो। और काफिर भी नेकी के काम करता है तो इस पर इसकी मौत के वक्त कुछ आसानी कर दी जाती है ताकि इसके इन अच्छे काम का बदला हो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है हर शख्स की मौत इसके दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे माल के मुताबिक होती है। ताहम हजरात कराम, उलमा कराम, मुहद्दिसीन, अल्लाह ने यह लिखा है कि मोमिन को जो भी तकलीफ होती है और वह तकलीफ सिर्फ गुनाहों के बख्शिश के लिए हो या इसके दर्जात की बुलंदी के लिए हो, वो हालत निज़ा ऐन रूह निकलने के वक्त से पहले होती है और जब इसकी रूह निकल रही होती है तो इस वक्त अल्लाह ताला इसकी तमाम तकालीफ को दूर फरमा कर सहूलत आसानी से रूह कब्ज कर लेते हैं और आने वाले मराहल भी आसान फरमा देते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है हम सब मुसलमानों की मौत के वक्त की सख्तियों को दूर फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। मुझे अच्छी लगी वीडियो को लाइक